ओवर द वीकेंड वी हैड 2 क्रेजी फाइट्स जो मैंने बिल्कुल कवर नहीं करी, एंड ये बिल्कुल मेरी गलती है। आई डिड नॉट रियलाइज कि ये फाइट्स एक्चुअली कितनी बड़ी हो जाएगी। पहला था जेक पॉल एंथनी जोशुआ, एब्सोल्युटली इनसेन। दूसरा था एंड्रू टेट वर्सेस चेज टिमोर, लाइक एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर फाइट्स। लेकिन इस वीडियो में we're gonna dive a bit more deeper into both of these fights. दोनों की क्या पॉलिटिक्स है, दोनों की फाइट्स एक्चुअली कैसे गई, एंड व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक फॉर ऑल ऑफ दीज स्टार्स। पहला था जेक पॉल एंथनी जोशुआ। आई मीन, आप जितनी भी क्रेडिट जेक पॉल को दे सकते हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा दो, बिकॉज मैन, द बॉल्स यू नीड टू गेट इन विद an Olympic medalist, a 2-time heavyweight champion of the world, a guy who is 5-6 inches taller than you, 30 pounds heavier than you. भाई रिस्पेक्ट जहाँ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। Oh my God. And पहले 2-3 राउंड्स आई रियली थिंक जेक वन दोस। जेक जैब कर रहा था, जेक was getting out of the way। मेरे को पता है कि गेम प्लान ऑब्वियसली बकवास था, लाइक यू नो ऑब्वियसली evade as much as you can, लेकिन you can't blame the guy. He's fighting Anthony Joshua, for Christ's sakes. अगर किसी के against it's justified to have a game plan like that, जहाँ पूरे टाइम बस थोड़ा भाग रहे हो, you're fighting on the outside, it's against a guy who's way bigger than you, has way more experience than you, and has crazy knockout power. It's justified. But ultimately इस fight में वही हुआ जो होना था। एंथनी जोशुआ नॉक्स आउट जेक पॉल ब्रूटली। मतलब पंच इधर लगा, जेक पॉल की जॉ इधर से और इधर से दोनों जगह टूट गई। वाह मैन, यू नीड बॉल्स ऑफ स्टील टू डू दैट ब्रो। एंथनी जोशुआ लेकिन यार, ही लुक्ड वेरी रस्टी। ऑब्वियसली एंथनी जोशुआ 1.5 साल से लड़ा नहीं है। He hasn't fought since his loss to Daniel Dubois, जो एक बहुत बुरी लॉस थी एंथनी जोशुआ के लिए। He looked very rusty, was missing punches, he was getting tagged by Jake Paul, and I was like, bro, like अगर Jake Paul तेरे को ऐसे टैग कर रहा है, like तेरी अगली फाइट में क्या होगा? There are rumors that Anthony Joshua and Tyson Fury have already agreed to a bout in 2026. What? What are you guys on? I am a fan of Anthony Joshua. I think he is one of the best British boxers ever. लेकिन भाई अगर तू टाइसन फ्यूरी से लड़ने वाला है जो इतना टेक्निकली साउंड है, he has insane stamina, उसकी चिन भी काफ़ी अच्छी है। I don't know, I think it's going to be a very tough fight, especially आज के एजे को देख के। Like आज का जो एंथनी जोशुआ है वो इतना स्लो है, इतना ओवर थिंक करता है अपने पंचेस के साथ, इतना sort of, you know, like थोड़ा सा डरा हुआ है, just because his chin has been cracked so many times. When you come up against a fighter like Tyson Fury जो इतने weapons लाता है अपनी गेम में, feints, his size, his power, उसकी जो pace है, उसका जो stamina है, like Anthony Joshua, I don't know if he can withstand it, bro. I don't know if he can withstand it. And I know कि लोग कहेंगे कि Tyson Fury had a very close fight with Francis Ngannou, लेकिन Anthony Joshua absolutely destroyed Francis Ngannou. Like bro, Tyson Fury did not take that Ngannou fight seriously. उसने उसके लिए बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया. He looked fat as shit. Like he thought he was fighting an MMA fighter, and admittedly he did underestimate him. Lekin that doesn't change the fact that when he goes to prepare for a guy like Anthony Joshua, the camp is going to be completely different. This is a guy जो Tyson Fury के generation में लड़ा है. He's heard AJ's name multiple times. दोनों की बहुत rumors थे कई साल पहले कि they're gonna fight each other, लेकिन obviously वो कभी हुई नहीं. But man, if this fight happens, it's gonna be like a super fight यार. And मेरे को लगता है one of the last super fights these guys can have, क्योंकि टाइसन फ्यूरी और एंथनी जोशुआ was the only fight जो अभी तक बनी नहीं थी. हमें उसिक फ्यूरी मिल गई, उसिक डुबुआ मिल गई, डुबुआ एजे मिल गई. लाइक बस फ्यूरी और एंथनी जोशुआ इज द बिगेस्ट हैवीवेट सुपर फाइट दे कैन मेक राइट नाउ, एंड इट्स गोना बी ऑसम. जेक पॉल के लिए भाई balls of steel,
मैं मतलब कितनी बार कहूँ, दिस गाय यार, आप इतना पैसा कैसे कमा सकते हो एंड यू स्टिल डाउन टू गेट योर जॉ ब्रोकन, you're still down to fight, you're still willing to lose in front of so many people. Like बहुत लोग जेक पॉल को बकवास समझते हैं, they hate him, they want to see him get knocked out, लेकिन he's just playing a character, and वो जो कैरेक्टर है इतनी अच्छी तरह प्ले करता है कि people genuinely hate the guy. People उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते for everything that he's doing for the sport. Like जेक पॉल के बारे में हम जो भी कह सकते हैं, बट उसने वुमेन्स बॉक्सिंग के लिए, उसने बॉक्सिंग एज अ होल के लिए इतने बच्चों को वो बॉक्सिंग में लाया है, यू नो, लाइक ही इज़ डूइंग थिंग्स दैट पीपल जस्ट डोंट गिव हिम क्रेडिट फॉर, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ यूट्यूबर, जस्ट क्योंकि वो स्पोर्ट में नया है. लेकिन मैन, ही इज़ अ डिसरप्टर, ही डिजर्व्स एवरीथिंग दैट ही हैज़. एंड आई थिंक उसकी अगली फाइट के लिए I don't know who's next. Cruiserweight में maybe you fight someone who's ranked, but पता नहीं यार. Like Jake Paul का future, I think it's better if there are more entertaining fights. I don't know अगर वो world championship कभी जीत सकता है. Like bro, the level for that is just unreal. It's too hard. He's fighting guys जो अपनी पूरी लाइफ लड़े, उनका एक crazy amateur record है. लेकिन देखते हैं यार, कुछ भी हो सकता है. देन वी टॉक अबाउट एंड्रू टेट वर्सेस चेस टिमूर. एंड मैंने ये फाइट नहीं देखी बिकॉज ब्रो इट वाज सो लेट. ये फाइट लिटरली 3:30-4 बजे हुई मेरे टाइम में. एंड आई एम सो ग्लैड आई डिडंट, क्योंकि मैंने इसकी हाईलाइट्स देखी एंड इट वाज जस्ट अ मेस. मिसफिट्स बॉक्सिंग जो KSI की प्रमोशन है, इट्स लाइक दिस इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग क्रैप जहाँ बड़े बड़े नाम लड़ते हैं. राइट, यू हैव लूक रॉकहोल्ड जो यहाँ लड़ता है, टोनी फर्गसन, डिलन डैनिस, मतलब सारे जो MMA UFC के बड़े बड़े स्टार्स हैं और अब पुराने हो गए हैं. दे कम ईदर हियर और दे गो टू जेक पॉल्स MVP. विद टेट डिमूर it was just a disappointing fight, and I did not think Chase Demore would win that fight. To beat a guy like Andrew Tate who has 80 fights, right, even though those are kickboxing fights, 80 fights are 80 fights. Alex Pereira यार kickboxing champion था, and आप देखते हो उसने MMA में क्या किया, उसकी जो स्ट्राइकिंग है उसने उसको कहाँ तक पहुँचाई. और फिर एंड्रू टेट हु इज़ दिस गाय, यू नो, हु कांट लूज, आई एम दिस सिग्मा मेल, ये यूट्यूबर मेरा क्या बिगाड़ सकता है, विद लाइक 10 फाइट्स, एंड ही एक्चुअली वन बाय मेजॉरिटी डिसीजन. इट वाजंट इवन कि यार स्प्लिट डिसीजन है, ये क्लोज है, लाइक चेज वन द फाइट. एंड्रू टेट के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता. आई वॉज ऑब्वियसली अ बिट डिसअपॉइंटेड इन द वे ही लुक्ड. मेरे को लगा, just talking the shit that he talks, the man that he is, I thought he would live up to the hype, लेकिन he didn't. Misfits का वैसे भी काफ़ी boring सा है यार, to be very honest. One thing I will say, नीरज गोयात versus Anthony Taylor हुई थी. नीरज गोयात looked phenomenal. Going into that fight मैं इतना sure नहीं था, क्योंकि नीरज गोयात has kind of looked like, is he good, is he not good, like क्या वो बस यू नो ऐसी फेम ऑडियंस के लिए दिखाता है, लेकिन ही इज़ एक्चुअली गुड ब्रो, ही इज़ रियली रियली गुड. इस फाइट में उसने अपनी जो हेड मूवमेंट है दिखाई, उसकी जो स्ट्राइकिंग है दिखाई, ही जस्ट शोड हिज कंपोजर टू स्टे इन द फाइट एंड एब्सोल्युटली आउटक्लास्ड एंथनी टेलर. सो दैट गाय इज गोना बी फन टू वॉच. लेकिन अदर देन दैट, ऑलवेज भाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फाइटर्स. Great to see, you know, some blockbuster fights. हमेशा I think these fights bring a good mix, you know. कभी कभी ऐसे होता है कि UFC देख के you know इंसान थक जाता है, लेकिन these fights kind of come around, they bring in boxing, they bring in new highlights, new news, नई interesting conversations बन जाती है, and yeah, it was just awesome to see.